Hello friends. So in the last lecture we had discussed the chemiosmotic hypothesis, and in the chemiosmotic hypothesis there is the formation of ATP, and in the PS2 there is the formation of NADPH, or you can say NADPH plus H plus or NADPH2. Okay, now in the early video lectures I will already I have already discussed that, or I have already told you कि there is the use of ATP and NADPH2 कि ATP and NADP use in the dark phase, or you can say biosynthetic phase. And मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि biosynthetic phase is dependent on light phase, not light is necessary for the dark phase. Okay, ये मैंने आपको बोल दिया है in the previous lecture. Now there are so many research and so many experiments are there for the knowing of the sugar formation, or how the plant form a new, or they produce a sugar or a nutritive material. Rather, nutritive material is sugar, that's why, rather glucose, that's why I'm saying that ki nutritive material rather glucose. Okay, so now ki with the use of ATP, with the use of NADPH2, plant synthesize the glucose, or plant synthesize the nutritive material. Okay, now second thing कि प्लांट है वो अब तक सिर्फ लाइट फेज के अंदर दे यूज ओनली अ क्लोरोफिल और लाइट एंड वाटर ओनली, दे यूज द वाटर ओनली एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन, बट दे नॉट यूज्ड the CO2, means they do not use at present. उन लोगों ने CO2 अब तक यूज नहीं किया. Now in the dark phase they use the CO2, and from the use of the CO2 they synthesize the food. Okay, now there is the different experiments, there are the different practicals are there. Now the scientist called साइंटिस्ट का नाम था मेल्विक कैल्विन. सो द साइंटिस्ट मेल्विक कैल्विन he done the so many experiments on the algae after Second World War, means after 1945, because after World War there is the invention of radioactive elements. Okay, radioactive isomers. Okay, so he used the radioactive isomers of carbon. Normal carbon is C12, but he used C14 carbon. Okay, he fixed the C14 carbon into the plant, as जो plant है वो CO2 fix करता है naturally, इसने fix किया C14 को in the plant. Okay, when he fixed C14 into the plant, उसने जब C14 को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, सो प्लांट सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन, हैवी कार्बन, बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव आइसोमर्स ब्रदर. सो ओके, देन व्हाट हैपेंड? ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस C14 ही नोज कि विच एलिमेंट इज फॉर्म. ओके, तो ये जो कार्बन है जो हम बाहर से फिक्स करते हैं फ्रॉम एटमोस्फियर, वो प्लांट किस में फिक्स करता है और कौन से प्रोडक्ट बनाता है. ओके, उसके लिए उन्होंने algae पर एक्सपेरिमेंट किए, एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड कि द एटमोस्फेरिक CO2 फिक्स्ड इन द प्लांट और rather leaf, and they form a 3 carbon molecule. 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला जो 3 कार्बन है जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट, यू कैन से फॉस्फोग्लिसरेट PGA. सो PGA हैविंग 3 कार्बन. ओके, PGA इज हैविंग 3 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. 3 कार्बन है, एटम है रादर, सॉरी 3 कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर PGA के. सो इट्स कॉल्ड C3 पाथ, कि जिस पाथ से शुगर फॉर्म होगी, या जिस पाथ से ग्लूकोज फॉर्म होगा, इस पाथ को बोलते हैं C3 पाथ. व्हाई इट्स कॉल्ड C3 पाथ?
because the atmospheric carbon fixed and they form a PGA which is 3 carbon molecule. That's why it's called C3 path. And with the help of this PGA further PGA का reduction होगा, and after the reduction of PGA they form the glucose PGAL and then glucose molecule. Further so many reactions, after so many reactions, so they form a glucose molecule, and then after बनता है फिर से वो एक साइकिल है पूरा जिसको C3 पाथ, और बिकॉज ऑफ कैल्विन ने जो ये साइकिल फाइंड किया था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैल्विन साइकिल. ओके, उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी आगे, लेकिन ये एक साइकिल है जिसको C3 पाथ बोलते हैं. नाउ सेकेंड वन इज कि सम प्लांट्स के अंदर दूसरी भी एक बात है कि जिसमें CO2 है वो फिक्स होके 4 कार्बन मॉलिक्यूल एसिड प्रोड्यूस करता है. 4 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एसिड फॉर्म करता है आफ्टर द फिक्सिंग ऑफ CO2. CO2 जो प्लांट में फिक्स होता है उससे बनता है 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, वो है OAA, जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA which is 4 कार्बन मॉलिक्यूल. ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल से आगे फर्दर प्रोसेस होके ग्लूकोज बनता है या फिर न्यूट्रिटिव मटेरियल बनता है जिसको बोलते हैं C4 पाथ. सो देयर आर ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए प्लांट के अंदर 2 पाथवे है. सम प्लांट के अंदर प्लांट्स के अंदर C3 पाथ होता है और सम प्लांट के अंदर C4 पाथ होता है. मीन्स C3 पाथ सभी प्लांट में होता है. ये एक बात है कि C3 पाथ है वो सभी प्लांट के अंदर होता है, और C4 प्लांट सिर्फ सम मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट है, जो प्लांट सिर्फ मोनोकोट प्लांट्स हैं जनरली, उनके अंदर C4 पाथवे होता है जनरली. ओके, सो C3 path and C4 path, both pathways are for formation of glucose formation के लिए दोनों pathway है. So plant uses C3 path and C4 path. Okay, so these are the product. Why we call C3? Because PGA is the first product of C3 pathway, because glucose fixed with molecule in the form of PGA molecule के अंदर वो फिक्स होते हैं, और वैसे ही वो दूसरे प्लांट के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OAA के फॉर्म में फिक्स होता है. ओके, सो these are the 2 pathways. Now what about the acceptors of CO2? कौन CO2 एक्सेप्ट करके ये C3 बनाता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि a normal person imagine that कि सर 3 कार्बन वाला एटम बनाना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है, तो कार्बन एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल है या कार्बन रिसीवर जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन वाला हो सकता है? 2 + 1 3 मीन्स हो गया 3 कार्बन वाला PGA. बट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज जो कार्बन एक्सेप्टर है या कार्बन रिसीवर है वो 5 कार्बन वाला है. It has the 5 carbon, and the name is RUBP, ribulose 1,5 bisphosphate. इसका जो फुल फॉर्म है वो है ribulose 1,5, मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम पर एंड 5th कार्बन एटम पर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं. 1,5 bis मीन्स 2 फॉस्फेट. Okay, so the electron receiver is ribulose 1,5 bisphosphate. Ribulose 5 कार्बन शुगर है जिसके फर्स्ट कार्बन एंड 5th कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट, या टोटल हो गए 2 फॉस्फेट, एक 1 पर एक 5th पर. So 1,5 bisphosphate. This is the acceptor of CO2.
मीन्स यू कैन से कि 5 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है RuBP उसके साथ CO2 बाइंड होके 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है विच इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई दे बिकम ब्रेक एंड रह जाता है 2 PGA मीन्स 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं PGA के या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, दैट्स व्हाई दे बिकम 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ओके, Why? Because 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो RuBP उसके साथ एक अटैच होकर 6 कार्बन बनेगा, वो अनस्टेबल होगा जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा और 3 यानी 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे PGA के। ओके, सो पहले ऐसे साइंटिस्ट मानते थे कि 2 कार्बन वाला होगा और उसके साथ तीसरा कार्बन अटैच होकर 3 कार्बन वाला बनेगा, लेकिन विच इज रॉन्ग हाइपोथेसिस। ओके, सो साइंटिस्ट को काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि विच इज रॉन्ग। द राइट थिंग इज कि 5 कार्बन वाला एक्सेप्टर या रिसीवर जो है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 5 कार्बन एटम्स है उसके अंदर, और रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट सॉरी RuBP है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। नाउ इन द C3 पार्ट, ओके, C4 पार्ट के लिए इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड रिसीवर है वो अलग है, जिसके बारे में हम C4 पार्ट में बात करेंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर C4 प्लांट्स। ओके, सो C3 प्लांट्स, सॉरी माय मिस्टेक, C3 प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं विद द C3 प्लांट। ओके, नाउ in the C3 plant what happened कि जिसके अंदर as you know कि क्लोरोप्लास्ट आर मोर नंबर इन लीफ, एंड लीफ के अंदर जिसके अंदर आप यू आर नो और डोंट नो दैट, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो कि मेसोफिलिक सेल्स, द पेरेन्काइमा व्हिच इज प्रेजेंट इन लीफ इट्स कॉल्ड मेसोफिलिक सेल्स। मेसोफिलिक सेल्स के अंदर देयर आर मोर नंबर ऑफ क्लोरोफिल। ओके, सो मेसोफिलिक सेल्स है, मेसोफिल वो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये प्रोसेस होती है, द लोकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। सो द फर्स्ट वन इज कि देयर इज द RuBP इज देयर व्हिच इज रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम इसके साथ अटैच होता है और ये फॉर्म करता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल which is unstable, so they form the 6 carbon molecules which is unstable, and this process is called carboxylase. This process is called, the enzyme is carboxylase and the process is carboxylation because it is the carboxylation of RuBP. That's why this process is called carboxylation process and the enzyme is called RuBP carboxylase. Process is called carboxylation and enzyme is called RuBP carboxylase. Carboxylation is there and the enzyme is called carboxylase, जो प्रोसेस करवाता है कार्बोक्सिलेशन की। ओके, सो कार्बोक्सिलेज, बट दिस एंजाइम इज यूनिक बिकॉज समटाइम्स दे डन द ऑक्सीजनेज आल्सो, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस भी करते हैं RuBP की। ओके, सो RuBP अगर CO2 के साथ बाइंड नहीं हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा and then oxidation हो जाएगा, okay, oxygenation rather you can say, and this enzyme done the both reaction, that's why it's called RuBP carboxylase or oxygenase. carboxylase और carboxylase oxygenase, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रूबिस्को। RuBP carboxylase oxygenase, Rubisco. The full form of this enzyme, short form of this enzyme, Rubisco. You can write like this also, Rubisco.
ribulose 1,5-bis-phosphate carboxylase oxygenase. Okay, carboxylase oxygenase. This is the full name of enzyme Rubisco. So Rubisco क्या करता है? It fixes the CO2 with RUBP and they form the 6-carbon molecule which is unstable, and automatically the PGA it will break and the PGA will form 2 molecule of PGA will form. Okay, so this formation of PGA from RUBP with the help of carboxylase enzyme, this whole process is called carboxylation, or you can say RUBP का जो carboxylation होता है वो. Okay, now the second step which is very important. The second step, ये मैं round नहीं कर रहा because board के बाहर चला जाएगा. Okay, that's why मैं straight लिख रहा हूँ. The second step is reduction of PGA. Okay, reduction of PGA. Now during this reduction of PGA, the energy is required. Energy चाहिए this reduction के लिए. Now as you know कि who gives the energy? ATP. So यहाँ पे जितने PGA के molecules है उतनी energy, उतने number of ATPs चाहिए. यहाँ पे 2 number of PGA है. So यहाँ पे कितनी ATP चाहिए? 2 ATP, which is converted into 2 ADP. So 2 ATP is converted into 2 ATP means energy यहाँ पे required है for reduction, और reduction के लिए क्या चाहिए? NADPH2 which is converted into NADP. means जितने molecules हैं PGA के उतने molecules चाहिए NADPH2 के. So PGA के 2 molecules हैं तो NADPH2 के कितने molecules चाहिए? 2 molecule of NADPH2. So for this reduction process they require the ATP. The ATP is required with the concern with the molecule of PGA. PGA के molecule जितने चाहिए उतनी ही ATP चाहिए. Okay, और बनेगा PGAL जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. सॉरी थोड़ा बाहर चला गया. PGAL phosphoglyceraldehyde. How many molecules? 2 molecules. Okay, so 2 molecule of PGAL है, और इस PGAL में से PGAL is used for synthesis of glucose. Okay, ये further glucose की यूज में जाएगा. PGAL वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ. And another PGAL is used for regeneration of RUBP. Means वो RUBP के regeneration में फिर से यूज होता है. Okay, now listen carefully. यहाँ पे आपने कितने CO2 को फिक्स किया? 1 molecule of CO2. ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का होता है? C6H12O6. So as you know the equation of photosynthesis is 6CO2 12H2O, as you know. Now we fix the 6 number of carbon material, yeah, carbon dioxide. So the 6 number of unstable molecule. So PGAL कितना बनेगा? एक मॉलिक्यूल था अनस्टेबल तो 2 PGAL बने. यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है तो 6 into 2 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बनेंगे. 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL. Now 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL. So out of this 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, उसके रिडक्शन के लिए कितने ATP चाहिए? 12 ATP always. Okay, 12 ATP is required for the reduction of 12 PGA. Now same as for the reduction of 1 PGA का रिडक्शन के लिए 1 NADPH2 चाहिए. 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 NADPH2 which is converted into NADP. Okay, now for the regeneration के लिए you require 1 molecule for 1 ATP. 1 ATP for 1 molecule.
अगर आपको 1 PgAl है तो यू रिक्वायर्ड 1 ATP into ADP. Now listen carefully. After reduction of PGA, the 12 molecule of PgAl is formed. Now PgAl is also having 3 carbon because the only reduction is there, not adding of carbon or removal of carbon molecule. So PgAl, phosphoglyceraldehyde, is also done with the it is also having the 3 carbon. It has the 3 carbon material. Okay. Now out of this 12 PgAl, 10 PgAl है, वो 10 PgAl which is used for synthesis of ribulose 1,5-bisphosphate, and 2 PgAl is used for formation of glucose. Now ये 2 PgAl से ग्लूकोज कैसे बनता है वो आप सीखेंगे 14th चैप्टर से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 PgAl मॉलिक्यूल से ग्लूकोज फॉर्म होता है, which also require energy but still होता है। ओके, 2 PgAl मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज फॉर्म होता है। ओके, सो वो जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? नाउ आउट ऑफ दिस 12, 10 PgAl मॉलिक्यूल हैं या 10 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। अब रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कितने चाहिए? ऑब्वियसली 6, बिकॉज यू फिक्स दिस 6 CO2। सो ये पूरा साइकिल एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितनी बार साइकिल होगा? 6 टाइम। एक टाइम के लिए आपको मिलेगा 1 या 2 PgAl बनेंगे, एक 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें एक ATP यूज होगा। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 10 यहां पे एक दूसरी बात, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ATP यूज होता है फॉर वन सिंथेसिस। ये साइकिल कितनी बार होगा? 6 टाइम। तो यहां पे कितने ATP यूज होंगे फॉर रीजनरेशन? 6 ATPs। ऑब्वियसली एक PgAl था तो उसका रीजनरेशन के लिए एक ATP लगा। सो यहां पे साइकिल कितनी बार हो रहा है? 6 टाइम। तो यहां पे कितने ATP होंगे? 6 ATP यूज फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP। ओके, सो नाउ द टोटल अमाउंट, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हम गिने तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज कितनी बार साइकिल होता है? कैलोरी साइकिल 6 टाइम। ATP कितना यूज होता है? सो 12 यहां पे और 6 यहां पे, मींस 18 ATP इज यूज्ड। एंड व्हाट अबाउट द NADH2? सो NADPH2 इज 12 NADPH2 which is used for reduction of PGA. So PGA के रिडक्शन के लिए 12 NADPH2 and 18 ATP यूज होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्लूकोज मटेरियल। ओके, सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ Calvin cycle. First is carboxylation, second is reduction, and third one is regeneration of RUBP. Okay, so there are 3 steps of C3 path. This is the whole C3 path. Okay. सो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे हम C4 पाथवे, उसमें क्या यूनिक है वो देखेंगे। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ। ओके, बाय।